Hello guys, welcome to Economics with the Music. Sarita Kishore here. Are you ready? Dingy don ding, ding dong, ding dong, ding dong, dingy don ding, ding dong, ding dong. एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 Human capital formation. Yes, the exam is very near to us. We have to learn with a full of grace with economics with a music. 100 marks. You are ready? Are you already ready? Okay. Human capital formation. Do you know physical capital, human capital formation, sources of human capital formation? These all things today we are discussing and learning with a full of energy and enthusiastically we are learning. Before that, don't forget to subscribe the channel and press the like button. It is the reward from your side to me. Okay, so सारी उम्र हम मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो ना 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 ना. Give me some sunshine, give me some rain. I want grow once again. Come on. Human capital formation. What is physical capital? Do you know what is physical capital? Physical capital होते हैं क्या है? The inputs, the raw materials, the resources, the capital, the machinery. What else the economy is getting for producing some goods? Understand? For the production process, whatever inputs are available in the economy is called physical capital. Is that clear? Now, what is human capital? The whole human resources are human capital of the country. Human capital means the whole human beings, those who are educated, skilled and trained to do any of the economic activity. कोई भी economic activity करने के लिए एक इंसान को क्या करते हैं? Develop किया जाता है through providing different skill of knowledge, trained skill of knowledge. That individual is means the individual who is received all the skill of knowledge to do any particular economic activity. That individual is called what? A human capital of the country. Understand? Now we should know about what is human capital formation. How to form a human capital? Human capital कैसे अपन form कर सकते हैं? कैसे फॉर्म कर सकते हैं? इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग स्किल्ड नॉलेज. ट्रेंड नॉलेज को क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं, सीखते हैं. Understand? So that person or that process is what called human capital formation. Look at here, the meaning of human capital formation. The meaning of human capital formation is, what is the meaning? It is the process of acquiring and increasing the number of persons. Number of persons को बढ़ाना है. कैसे बढ़ाना है? Who have the skill, education and experience. जो इंडिविजुअल को स्किल भी होना चाहिए, ट्रेंड स्किल, ट्रेंड नॉलेज होना चाहिए, एजुकेशन अवेयरनेस होना चाहिए एंड इंक्रीजिंग द एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस. Experience means what? Doing work in the particular field, particular economic activity, उसके awareness. Understand? So which are essential for economic and political development of a nation. एक nation का economical and political development किसको डिपेंड करते हैं? ह्यूमन कैपिटल को डिपेंड करते हैं. अंडरस्टैंड? वी ऑल आर एजुकेटेड, यू ऑल आर एजुकेटेड टू बिकम अ ह्यूमन कैपिटल ऑफ द सोसाइटी. That is what always I used to tell you. You all are the future human resource.
of the nation. Understand? Whatever works we are doing for ourselves, whatever works we are doing for our family members, और कोई भी काम अपना अपने लिए कर रहे हैं, वो भी क्या होते हैं, अपना नेशन के लिए क्या होते हैं, डेवलपमेंट के लिए हेल्प आउट करते हैं. ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर वर्किंग, योर फैमिली मेंबर्स आर वर्किंग नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ, योर बेनिफिट, इट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री. If all the person are having skilled knowledge, the whole population is having skilled knowledge and a trained skill to do some economic activity, then that country is considered as a developed country. Understand? So, what is human capital formation? It is the process of acquiring. Acquiring means receiving. What to receive? Or increasing the number of persons, number of people को क्या करना है, who have the skilled education, trained skill of education and the experience to do particular economic activity. So there exists human capital formation. समझ में आया? समझ में आएंगे, क्योंकि वी आर द ह्यूमन रिसोर्स इन फ्यूचर. नाउ सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए क्या क्या सोर्सेस अवेलेबल है इकोनॉमी में. मेरे स्टूडेंट्स हमेशा पूछते हैं, मैम मीन से 11th to 12th कॉमर्स सब्जेक्ट लिया आपने, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट लिया है, अभी आगे जाके हायर स्टडीज में कौन सा सब्जेक्ट को अपने ऑप्ट करना है, हमको करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है. Understand? So which means that where you can get a skilled idea, skilled knowledge or trained skilled to do some economic activity in future. You are getting? So here the investor, सबसे पहले क्या है, एजुकेशन, सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. क्या क्या सोर्स थ्रू एक इंसान को, एक इंडिविजुअल को, एक पर्सन को ह्यूमन कैपिटल अपन बना सकते हैं. सबसे पहले सोर्स है इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन. एजुकेशन के लिए मनी इन्वेस्ट करना है. आप लोगों को पता है स्कूल में अपने पेरेंट्स हमको पढ़ाई करने के लिए, पढ़ने के लिए फीस जमा करते हैं. ये फी पे नहीं हो रहा है, फी इन्वेस्ट हो रहा है. व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ your parents to send you to school? Their intention is to make you to become a good human being of the society. When an individual to become a good human being of an economy, when do you become a human being of an good human being of an economy? When you become a good human resource, so something you can do for yourself, your family members, your society, your nation, then you are the human resource, you are the human capital. So that is what education, whatever amount the parents are paying for you is considered as an investment. It's not a paid amount. It's not a, we are not consuming anything. We just investing for what? Gaining the knowledge. Understand? So investment on education, the most source of human capital formation is to invest on education system. एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट क्या है, एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना है. एंड सिस्टम एंड द ट्रेनिंग ऑफ पीपल एंड मेक द पीपल टू गेट ट्रेन्ड इन व्हाट डिफरेंट एरिया ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, डिफरेंट एरिया ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अंडरस्टैंड? अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होकर प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या करना है, अपने सर्विस को रेंडर करने के लिए एक इंसान को क्या करना है, कार्व आउट करना है. दैट इज व्हाट कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम. दैट इज द इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन मीन्स द मोस्ट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज टू इन्वेस्ट. कहां पे? ऑन एजुकेशन सिस्टम एंड ट्रेनिंग ऑफ, उनको ट्रेन करना है ऑफ द पीपल. किसको? लोगों को ट्रेनिंग देना है. अंडरस्टैंड? द नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन एनेबल्स द इंडिविजुअल टू मेक अ गुड लिविंग थ्रू आउट हिज लाइफ. ये एजुकेशन एक बड़े रोल प्ले करते हैं. एक इंडिविजुअल इंसान का लाइफ को थ्रू आउट क्या करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करते हैं थ्रू. इफ द इंडिविजुअल इज गेटिंग जॉब, ही डेफिनेटली डू अर्न मनी and that amount of earning will make his standard of living. Understand? उनका standard of living को maintain करके आगे ले जाता है. So human capital formation में education very very important role play करते हैं. अभी देखो इधर, education enables an individual to make a good living throughout his life. And a good education system result an overall development of the economy. अगर अपने कंट्री का एजुकेशन सिस्टम वेल एंड व्हाट
प्रॉपर वे में कंस्ट्रक्ट किया है तो क्या होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी को भी डेवलप करेगा। हर एक पर कैपिटा इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिपेंड्स अपॉन द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, है ना। एक कंट्री का नेशनल इनकम हर एक इंडिविजुअल का पर कैपिटा इनकम को मिला के ही हम कैलकुलेट करते हैं। सो हर एक इंडिविजुअल इफ दे आर वर्किंग दैट इज द नेशनल डेवलपमेंट दैट कंट्री इज। जैसे अपन डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री ये सब आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज डिपेंड्स अपॉन द पर कैपिटा इनकम ऑफ द nation, understand? So with the total population, so overall development of the economy as education generate टेक्निकल स्किल, टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है अपनी कंट्री। अभी देखो पूरा दुनिया एडवांस्ड है, ये जो टेक्नोलॉजी को कैसे ऑपरेट करना है अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट में, कैसे अपन सिस्टम को चलाना है, ये सारी चीज आप लोगों के एजुकेशन सिस्टम क्या करना पड़ेगा, अपकमिंग जनरेशन को अवेयरनेस देना पड़ेगा, तभी हम प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्सेज को कार्व आउट कर सकते हैं। एंड स्किल एंड जनरेट अ मैन पावर विच सूट्स फॉर इंप्रूविंग द टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी। Understand? So education, source of education or investment on education is one of the source of human capital formation. Now we are going to discussing about the second, expenditure on health. Health is wealth. Health is wealth. Healthy mind can do effective work, 100% work. Understand? This is the oldest says. Right? If we are not in proper or appropriate health, then we won't be able to do anything. If you are a healthy mind, if you are having a healthy brain, if you are completely healthy enough, then you can do much better economic activities. So the another source of human capital formation is what? Expenditure on health. So it makes an individual more productive and hence it contributes more in the GDP of the nation. अपनी नेशन का GDP को improve करना है, increase करना है, तो हर एक इंडिविजुअल इंसान को क्या होना चाहिए, वो हेल्थी रहना चाहिए। अपन हेल्थी है कोई भी काम कर सकते हैं विदाउट डिलेइंग। अंडरस्टैंड? सो द सेकंड इज, थर्ड इज दैट ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अनदर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। दूसरा एक रास्ता है कि क्या करने के लिए ह्यूमन कैपिटल को कैसे अपन फॉर्म कर सकते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। व्हाट इज दिस ऑन द जॉब ट्रेनिंग? जो जॉब कर रहा है उसी में हमको क्या करना है, नॉलेज को अपग्रेड करना है, स्किल्ड नॉलेज को क्या करना है, सीखना है, एक्वायर करना है। अंडरस्टैंड? जॉब ट्रेनिंग में क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल द टीचर टीचिंग इन अ स्कूल। अंडरस्टैंड? टीचर पढ़ा रहे, वो टीचर को ओल्ड एंशिएंट टाइम ऑफ एजुकेशन सिस्टम से अभी क्या हो गए, टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हुआ है, उसके हिसाब से उनको क्या करना पड़ेगा, उनकी नॉलेज को अपग्रेड करना है, उनको ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग मिलना चाहिए। सो देन ओनली द टीचर कैन परफॉर्म और डू हर और हिज वर्क वेरी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू get the outcomes. The outcomes are the learning outcomes of the students. Understand? So like on the job training में हमको ये बता रहे हैं कि it refers to the training of the employees. Employees को training देना है while they are performing a job. कोई भी जॉब परफॉर्म करने के टाइम पर, डू करने के टाइम पर, जॉब करने के टाइम पर क्या देना चाहिए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग क्या है, ग्रेजुअली और सिस्टमेटिकली उनको क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी वो इंस्टीट्यूशन का आउटपुट क्या होगा, बढ़िया सा मिलेगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर as sharpens their skill. So लेबर्स और वर्कर्स हो गया है, प्रोफेशनल्स हो गया है, स्किल। सो इन लोगों का नॉलेज को, फॉर एग्जांपल एक लेबर एक इंडस्ट्रीज में, एक कंपनी में काम कर रहा है, बट नया कैपिटल मशीन वो कंपनी लेके आया है, वो कंपनी का मशीन को ऑपरेट करना है, तो ये जो लेबर को, ये वर्कर को प्रॉपर ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एक्वायरिंग द स्किल्ड नॉलेज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। में जॉब में है, उसी टाइम पर मुझे वो मशीन को ऑपरेट करना नहीं आ रहा है, सो इंस्टीट्यूशन नीड्स टू बी प्रोवाइड द प्रॉपर ट्रेन्ड स्किल टू
the particular individual to upgrade his knowledge to do in productive activities. Understand? So on the job training increases the productivity of labor and sharpens their skills as they work under professional guidance. वो प्रोफेशनल गाइडेंस के अंडर काम करोगे, वो लेबर क्या कर सकते हैं, अपना स्किल्ड नॉलेज को क्या कर सकते हैं, डेवलप करके अच्छा से वर्कआउट करके जीडीपी बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. मोर ओवर इट enables the workers to adopt new technologies and create human capital. थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन कैपिटल को क्रिएट कर सकते हैं. समझ में आया? सो इसका मतलब है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आपको लिखना है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में कोई भी जो काम कर रहा है, कोई कंपनी हो गया है, वहां पर लेबर्स हो गया, वर्कर्स हो गया, उनको क्या है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ नॉलेज होगा. अगर वो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की वजह से नया कैपिटल और मशीनरीज आ गया है, उनको वो ऑपरेट करना नहीं आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, उनको प्रॉपर तरीका से उसके ट्रेंड स्किल प्रोवाइड करना पड़ेगा. तो अगर वो इंस्टीट्यूशन में, वो बिजनेस कंपनी में प्रॉपर तरीका से उनको ट्रेंड स्किल प्रोवाइड करेंगे, तो वो इंसान क्या कर सकते हैं, अच्छे से अपने नॉलेज को अप्लाई करके प्रैक्टिकली उसको, वो एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट करके अच्छे आउटपुट वो कंपनी के लिए, वो नेशन के लिए, वो सोसाइटी के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं. सो अनदर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज ऑन द जॉब training. I hope you are understanding, you are getting what I am saying. Understand? Now we'll see the next, what may be the next source of human capital formation after these three. सबसे पहले हमने डिस्कस किया और इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन, सेकंड में हमने डिस्कस किया है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, थर्ड में व्हाट, द ऑन द जॉब ट्रेनिंग मींस इन्वेस्टमेंट ऑन जॉब ट्रेनिंग. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. कहते हैं बेटा नाम करेगा, बच्चा सोचते हैं कैसे काम चलेगा. चलेगा काम? इकोनॉमिक्स में तो म्यूजिक डियर्स, यस, द एक्सपेंडिचर ऑन जॉब इंफॉर्मेशन, the amount which we are investing for getting the information related to career opportunity courses, job opportunity courses. Understand? So that is depends upon the ability and the potential of the individual to do for selecting that particular career opportunity. You are getting my point? Oh my God, what is this, ma'am? This much language you have framed a single sentence. It's very difficult for understanding. Don't worry, my dears. कितने पैसा अपन इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं अपन को इंफॉर्मेशन, जॉब ट्रेनिंग के इंफॉर्मेशन मिलने के लिए. That is not we are spending, we are investing because अपने अंदर जो पोटेंशियल है, अपने अंदर जो टैलेंट है, एबिलिटी है, वो हिडन टैलेंट को, वो हिडन पोटेंशियल को ले आना है. तो हमको क्या करना पड़ेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब के बारे में अवेयरनेस मिलना चाहिए, नॉलेज मिलना चाहिए, जानकारी मिलना चाहिए. इसलिए हम क्या करते हैं, जॉब ट्रेनिंग कोर्स कहां पर मिलेगा, कहां से मिलेगा, इसका अवेयरनेस के लिए हम क्या करते हैं, मनी इन्वेस्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी आर चार्जिंग फॉर आवर मोबाइल, है ना, नेट चार्ज करते हैं, नेट कनेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, मनी इन्वेस्ट करते हैं. तो वहां से हमको गूगल बाबा से हमको क्या मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा. गूगल बाबा और गूगल आंटी, व्हाट डिड यू से, व्हाट एवर इट इज. ओके, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब मार्केट्स, कहां कहां जॉब अवेलेबल है, एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग, कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दुनिया में अवेलेबल है, which offering the specialized skill for doing any of the activities which you are interested to do, your ambitions to do. Understand? Skill is an important determinant of skill formation. It is the skill, means a source of skill formation, awareness which providing us to go this institution, go for getting the particular skill in this particular area, the availability. मार्केट में ये जॉब के ऊपर कितना डिमांड है, सो वहां पर जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मनी खर्च करना पड़ेगा, कई के लिए इंफॉर्मेशन मिलने के लिए. सो द फॉर्मेशन एज इट enables the individuals to actualize their true
ट्रू पोटेंशियल यानी आपके अंदर का जो एबिलिटी को आपको आगे ले आना है तो आपको कुछ ट्रेंड स्किल मिलना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, टीचिंग इज माई पैशन. आई वॉन्ट टू टीच, आई वॉन्ट टू डू समथिंग, आई हैव टू गेट अ ट्रेंड स्किल. दैट इज व्हाट कॉल्ड अ बैचलर ऑफ एजुकेशन. जैसे मुझे ट्रेंड स्किल मिला है, मुझे कहां से मिलेगा? थ्रू इन्वेस्टिंग मनी फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन मिलने के लिए मैंने ट्राई किया है, मैं इसके लिए मनी खर्चा किया. Then I will get the information. This particular organization is reputed organization, good for getting me trained skill to do this teaching profession. Understand? So this is what called expenditure on information. Is that clear now? And the next is what? Migration. Oh, what is migration? कुछ भी नहीं है. Migrating one place to another people. People do migrate from one place to another place for doing some economic activity. Rural area से urban area में लोग shift हो जाते हैं. क्यों shift हो जाते हैं? Getting some work to be done and getting some job opportunities. उसके लिए भी investment होता है. It refers to moving from one place to another. It contributes to human capital formation as it enables the utilization of an active skill of the what? स्किल ऑफ द पीपल्स, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूटिलाइज करके अच्छी प्रोडक्शन और आउटपुट प्रोवाइड करना है. सो यू वांट टू डू सम इकोनॉमिक एक्टिविटी. द पीपल डू मूव फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज. अंडरस्टैंड? एंड पीपल माइग्रेट बेटर फॉर फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इन ऑर्डर टू फाइंड बेटर अर्निंग्स एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. लोग क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह में जाके माइग्रेट के वहां सेटल होके वहां पर सर्विस प्रोवाइड करते हैं. दिस इज आल्सो अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. एक सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के पार्ट है माइग्रेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. इफ दिस क्वेश्चन इज कमिंग, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, डिस्क्राइब इन डिटेल और राइट ए शॉर्ट नोट्स. आ गया है 4 मार्क्स में, आ गया मान लो. माय गॉड, वेले वेले, वाओ. सो 4 मार्क्स आर देयर इन आवर pocket. Yes, my dears. What are the sources? Investment on education and investment on health for the job training and investment on expenditure on information, and the last not the least, which is what? Migration. And now we are moving to the next topic. 4 marks in our pocket. मैं डालो ताल पे भंगड़ा, तू भी गीता पाले, चल ऐसे रंग जमा दे कि हम सभी बने मतवाले. हेलो, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ. द 4th point, increases production. Which increases production? The role of human capital formation which increases production. Human capital formation क्या करते हैं? अपन को प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए मदद करते हैं. अपना इकोनॉमी का डेवलपमेंट, इकोनॉमी का स्टडी ग्रोथ किस में डिपेंड करते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में डिपेंड करते हैं. वी ऑल आर रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री टू गेट स्टडीली ग्रो economically and politically. Understand? So role of human capital formation in economic growth increases production. See, look at here. Human capital formation focuses on building a protective environment. Human capital formation किस में फोकस करते हैं? एक प्रोडक्टिव एनवायरमेंट को क्रिएट करने के लिए फोकस करते हैं. स्किल्ड लोगों को, ट्रेंड लोगों को क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं, कार्व आउट करते हैं. प्रोडक्टिव एनवायरमेंट को क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं. प्रोवाइडिंग प्रोडक्टिव स्किल, ट्रेंड स्किल एंड एजुकेशन टू द पीपल ऑफ द कंट्री. कंट्री का जो ह्यूमन बीइंग्स है उनको क्या करते हैं? ट्रेंड स्किल प्रोवाइड करते हैं. विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रेंड स्किल पीपल कैन डू इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू प्रोड्यूस मोर GDP फॉर द नेशन. Understand? So people of the country.
This productivity of the economy will automatically increases with the increase in the level of education. ये जो productivity क्या करते हैं, अपना economy को क्या करते हैं, promote करते हैं, uplift करते हैं कि in the level of education and skilled workforce, ज़्यादा workforce आएगा, educated society आएगा, human capital आ जाएगा, economy gradually steadily develop हो जाते हैं. The next में raises life expectancy. Yes, of course, we know that during the time of on the eve of Indian economy, on the eve of independence के time period में जो ब्रिटिशर्स आया है, उसके बाद अपना कंट्री में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 36 years was the last deadline life of a human being. Understand? So this education system or the human capital formation system will give the lifelong life of an individual, proper health facilities, proper education facilities, proper standard of living facilities. So the human capital formation, HC of human capital formation increases, बढ़ा देते हैं the life expectancy of the people, better health facility, proper health, काफी सारे डॉक्टर्स आ गया है, हेल्थ सेंटर्स आ गया है, मेडिकल फैसिलिटीज आ गया है, बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. एंड द गुड फूड इंक्रीजेस एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड, अंडरस्टैंड. सो इंक्रीजेस द लाइफ स्पैन ऑफ पीपल, हेल्थ अच्छा मिल रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड टाइम टू टाइम लोगों को मिल रहा है, क्योंकि दे ऑल आर व्हाट कैपेबल इनफ टू डू सम ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी थ्रू द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. सो दिस इज द मेन रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन in economic growth of a nation. And the third point we are going to discussing again, see once again, rises life expectancy, role of human capital formation, उसमें increases production, and the second में rises life expectancy, and the third, what is the third point that we are going to discussing? So it is human capital formation increases the life expectancy of the people, better health facility and good food increases the lifespan of people, and what raises quality of life. And the next is the standard of living of the people also promoted and supported through providing what? The human capital formation. This process of human capital formation, standard of living, सबके पास पैसा आ गया है, सबके पास सारे फैसिलिटीज आ गया है, लोग बहुत बड़ी खुशी से क्या करेंगे, लाइफ लॉन्ग लाइफ को सर्वाइव करेंगे. अंडरस्टैंड? एंड द नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग. So the another human capital formation is what? The role of human capital formation is that what? Improve quality of life. Quality of life को improve करते हैं. कैसे quality of life को improve करते हैं? Here people migrate for better earnings. People क्या करते हैं? Migrate करते हैं better earnings के लिए. कहाँ पर? ये कंट्री से और एक प्लेस में से दूसरे प्लेस में, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में. व्हाई दे आर माइग्रेटिंग? द पीपल आर हैविंग द what? The knowledge, the trained skill, the trained knowledge. These people has a demand in the market. So according to that, the people do migrate from one place to another place for getting better opportunities, and there they do live standard of life. How? The quality of life depends upon the level of education. Level of education, which level की education है, trained skill है कि नहीं particular economic activity करने के लिए, and the health care facilities, proper health care facilities the individual is getting or not, it is available or not. Then better working environment and proper working environment होना चाहिए, and good quality of food the individual is getting. So these all facilities can be enjoyed and get by the economy if there is a human capital formation. Then the human capital formation also increases the quality of life of a सोसाइटी. सोसाइटी का जो क्वालिटी लाइफ को क्या करना है, अपग्रेड करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वेरी गुड रोल प्ले करते हैं. द सेकेंड रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज इंक्रीजेस पार्टिसिपेशन एंड ब्रिंग्स इक्वालिटी. सो ये पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, इधर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है तो हर एक जो नॉलेजेड पीपल होते हैं, ट्रेन्ड पीपल होते हैं, उनका पार्टिसिपेशन मीन्स व्हाट इफेक्टिव और एफिशिएंट पार्टिसिपेशन होते हैं. थ्रू दैट it brings the equality. Equality means everybody will get money for their bread and butter. Understand? So this is what called the role of
Next, another role of human capital formation which increases participation and brings equality. Participation refers to the percentage of labor force. कितने percentage of labor force from the total population is available in a country. country के अंदर कितने percentage of workforce है, trained workforce है from the total population. Participate in the process of production. Human capital formation leads to enhancement of productive capacity. ये जो human capital formation क्या enhance करते हैं? Productive capacity of the country. Economic productivities को क्या करते हैं? Promote करते हैं, उसके लिए help out करते हैं. And labor which ultimately leads to greater employment. ये जो human capital formation employment opportunities को भी क्या करते हैं? Space देते हैं, जगह देते हैं, employment opportunities बढ़ा देते हैं. एंड इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. सबके पास पैसा आएगा, इक्वल लेवल ऑफ इनकम दे कैन मेंटेन. इक्वल लेवल ऑफ इनकम हियर इन द सेंस दैट सबके पास ब्रेड एंड बटर के लिए पैसा मिल जाएगा, कोई भूख से नहीं रहेंगे. दिस इज व्हाट कॉल्ड. सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट. सो दिस इज द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल. इनोवेटिव स्किल. With the increase in the number of skilled and trained workers, the possibilities of innovation also increases in the process of production. अंडरस्टैंड. कितने इनोवेटिव स्किल है, ट्रेंड पीपल है, ह्यूमन कैपिटल है, उनका भी जो आइडियाज है ना, नॉलेज कंट्रीब्यूट है कि नया नया इनोवेशंस को टेक आउट करने के लिए, टेकअप करने के लिए क्या होते हैं. सो दिस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत बड़े रोल, की रोल प्ले करते हैं. सो इनोवेशन ऑलवेज प्लेज अ की रोल इन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी एंड जनरेशन ऑफ इनकम ऑफ द कंट्री. फॉर एग्जाम्पल अभी हमको रिसेंटली हुआ था अपना चंद्रायन, है ना, वहां पर पहुंचे लोगों का जो हार्ड वर्किंग है, मेहनत है, एफर्ट्स है, स्किल्ड पीपल, दे डिड देयर कंट्रीब्यूशन फॉर द नेशन. द कंट्री इज वर्ल्ड फेमस now because of this kind of innovation skills which is done by the Indian society through the process of human capital formation. So that is what here innovative skills. With the increase in the number of skilled and trained workers, the possibilities of innovation also increases. नया नया चीज को इनोवेट करते हैं, इन्वेंट करने के चांसेस बहुत ज्यादा है अगर जो ये की रोल प्ले करते हैं, जैसे ये जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की रोल प्ले करते हैं, ये जो इनोवेटिव स्किल और ideas of the human beings, awareness of the human beings will help out to develop the economy very smoothly. Understand? So this is all about today's video. Signing out, Zaldakishore, Economics with the music. Don't forget to subscribe and press the bell icon and like.